Now, students, in last class we have studied about keywords, about tokens, and in that keywords, literals, and some more things. Okay. Today we are going to jump on operators. Okay. What are operators? Basically, if you will see in will link to math, and there is a operators like plus, minus, star, like this. Okay. Okay. So in computer you will use asterisk at the place of multiplication, minus, same. Okay. At the place of division you will use slash. Okay. Actually, when you will use these signs, so you have required some like data, like suppose that the values. Okay, like suppose that 2 plus 3. So here this is a operator. Plus is an operator, and these numbers are called operands. Okay, इनको हम operands बोलते हैं. Okay, like C, suppose that if I will write here C is an example, C is equal to A plus B. Here these are the operands. Okay, and plus is equal to whatever the thing, whatever the punctuators, whatever the um, formula you will use, and the conditions we will use, these all are operators. Okay, you can say that an operator is a symbol that trigger some actions when applied to identifier और operands, you can say require operand. ठीक है, तो इस तरीके से हमें ऑपरेंड जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है इज इक्वल टू प्लस. ठीक है, ए बी सी आर द ऑपरेंड्स एंड ऑपरेटर्स आर इज इक्वल टू एन प्लस. लेट्स सी हाउ व्हाट आर द ऑपरेटर्स क्या हैं और उनके बारे में, विच टाइप्स ऑफ इट्स ऑपरेटर्स, हाउ वी विल यूज दोज ऑपरेटर्स. ठीक है, लेट्स सी हियर. First of all, now see types of operators. Okay, types of operators, basically we will use operators based first of all unary operator. Okay, like unary plus and unary minus. ठीक है, then unary plus unary minus is a simple operator that we'll use in simple math. Okay, like a plus b, a to a plus c minus c. Bitwise operator complement, matlab it will convert the negative value, or you can say that these type of values functions will use in binary calculations. Okay, then logic negation will use not, like हमने लिखा a not is equal to b. ठीक है, here I have used symbol, but in Python we will use not. ठीक है, a not is equal to 6 means b means the value of a is not is equal to 6, or you can say b. Binary operators will use like I have written a is greater than b and then question mark. Okay, so this is the binary operator. Okay, so in this case it will ask you what is the value of a is greater or b is greater, like this. Okay, so here question mark is a binary operator which you will use. Okay, nowadays now in Python we'll use the binary operator at some places but not everywhere. Very rare places we will use binary operators. Okay, now because in Python programming easily arithmetic operator and relational operators, other operators we will use very easily, so that's why it's not required as much. Okay, arithmetic operators like plus, minus, star, slash, percent, double streak एंड डबल स्लैश, इनका सबका मतलब बताऊंगा मैं. ठीक है, अभी रिलेशनल ऑपरेटर विल यूज लेस देन और ग्रेटर देन. ठीक है, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, इक्विवेलेंट एंड नॉट इक्वल टू. ओके, लॉजिकल ऑपरेटर एंड और. and or means you can say that when you will use the conditions, at that time you have to use you can say that the and or will be the condition based operator. Okay, like suppose that हमने कहा
if A is not is equal, greater than B and A is greater than C. Here when both the conditions will true, like A should be greater than B also and A should be greater than C also. तो यहाँ पे क्या है कि आपको दोनों conditions false true होनी चाहिए, then the condition A is true. Same as if you will suppose that हमने कहा कि A is greater than B, और हमने लगाया we will use or, then in that case A is greater than C. तो in this case अगर A B से भी बड़ा होगा या फिर A C से बड़ा होगा, in both conditions it will, यहाँ पे suppose that it will true or this will false, then also the output will be true. But here in AND case the both conditions should be true, then only the output will be true. Okay, so this is a procedure that will use AND and OR. The more when I will teach condition, in at that time we will explain more. Okay, assignment operator will use is equal to, slash is equal to, plus is equal to, okay, माइनस इज इक्वल टू स्टार. इसका यूज कैसे यूज करते हैं इनको हम, ये शॉर्टकट मेथड होते हैं फॉर यूज असाइनिंग द वैल्यू. एग्जांपल देता हूँ, जैसे हमने लिखा a इज इक्वल टू a प्लस बी. ओके, a इज इक्वल टू a प्लस बी, बट this is a method according to math, it is wrong, but in computer it's the value of 2 plus 3. Suppose that the value of a is 2 and b is 3, you can add and the value of a is now 5. Okay, same output, same situation, same statement you can write like this also, a plus is equal to b. Okay, this is statement and this is statement, both are same. Okay, so same as here I have written plus is equal to, minus is equal to, star is equal to, so a minus is equal to b. ठीक है, तो in that case the value, the proper statement is equal to a minus a b. ठीक है, so this is the statements how we'll write. ठीक है, in short method and proper method also, normal which we'll use. Bitwise operator, that is those operators are used for some advanced conditions. Okay, or XOR, and bitwise operator will use. Shift operator, to shift, this will shift the values, means decrease the value or increase the value. Okay, shifting shift operator इनको बोलते हैं हम. ठीक है, how it will shift when the coming up classes I will tell you. Identity operator is not, ठीक है, is और is not. Suppose that ये loops में use होता है basically. ठीक है, और listing we will use, listing conditional statements में use होता है for identity. ठीक है, इसमें लिखा a is b. ठीक है, a is b या फिर a is in list, ऐसे करके यूज करते हैं, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना के. ठीक है, इसको कैसे यूज करते हैं और किस तरीके से यूज करते हैं, व्हेन आई विल टीच लूप एंड लिस्ट, इन दैट दीज टू ऑपरेटर्स वी विल यूज इन लिस्ट एंड इन अदर लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी में हम इनका यूज करते हैं. ठीक है, मेंबरशिप ऑपरेटर और आइडेंटिटी ऑपरेटर का हाउ विल यूज, विल टेल यू बेटर. ओके, नाउ सी we are going to discuss punctuators. ठीक है, punctuators like when you will study English. ठीक है, तो इनमें क्या होता है, फुल स्टॉप जैसे यहाँ पे लगा हुआ है, comma we will use slash, we will use double inverted comma. So here also some punctuators are there that we will use in Python. Okay, punctuators like double quote, we will call double quote this, single quote, this is single quote, hash, slash, bracket, parenthesis, brackets, common brackets, this is, okay, these symbols like at, okay, div dot is equal to, these all are punctuators in computer like English. Okay, so all are same which we'll use in computer, sorry, in English. There is little bit difference where we will use in English, that is different method, and in computer also there is a different method to use. Okay, so let's discuss more. एक program structure is there, I am going to show you. ठीक है, this is the structure. I have taken a screenshot of a program. ठीक है, so
as shown in as we have seen in image, ठीक है, program contains following components, that expressions contains statements, comments, functions. अब यहाँ पे देखो होता क्या है, just a minute, थोड़ा सा वॉल्यूम हो धीमा कर सकते नहीं. Now, see, so here condition. Are you able to listen my voice now? Okay. Expression, see, in this we will use comments. ठीक है, मैं comments भी different type के comments भी बताऊंगा कैसे कैसे होते हैं. ठीक है, we will use hash will use for comments. Okay. Triple quote at the place of triple quote we will use for multiple line comments. Here when you will use hash will use, तो यहाँ पे क्या होगा कि hash comments will use for writing comments. It will not execute. Okay, it will not execute as a program, as a code. It will interpreter will not take as a code for this. This is a negligible lines which you will write over here. Okay, so here यहाँ पे हमने फंक्शन डिफाइन करे हैं, जैसे def hello, तो यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन किया गया, दिस इज कॉल्ड फंक्शन. ठीक है, यहाँ पे जैसे स्टेटमेंट्स हैं, हमने लिखा a is equal to 15, राइट b is equal to 20 और print a plus b. Okay, you can write here a plus b in the print way, in this way also, and or you can write like sum is equal to a plus b, and then print, you can write print sum. This is also a way. Okay, there is a different way to write a program. When we will do the program instruction, then you can see. These are the blocks. Okay, no. Actually, that is the benefit only. This is the benefit of the Python. As we know, no need to define. If you are defining first, like suppose that if you are taking input from the user, okay, then you have to define. Whether or not required. Okay, if you are defining before execution of program, before writing a program, if you are taking input before the execution of the statement, okay, then it is not required. It will take automatically whatever the value you will define. Like suppose that if you will write a is equal to 2.35, then it will take automatically. Okay, it will tell you that this is a float, no issues. Okay, automatically it will take it as a float. Understood? Okay, if you will give a is equal to within a double quote Pandey, okay, so it will automatically take this is a string, no explanation needed. Okay, but if you will take input from the user, that input the value, input this, then in that case you have to define. That I will tell you later. I think it will the next 4-5 slide are there is there for today class. Okay, वो भी explain करूँगा, that you can understood. Okay, so if condition there is a indentation over here, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे. ठीक है, see in that in other languages there is a requirement of brushes. ठीक है, suppose that if you write if, then condition here you will write, then you will use brushes. Okay, but here in this language no need of brushes or required. It will like directly will log these statements, combined statements can be so called a block. Okay, and the distance, the gap between the proper way, it is called a indentation. It is called an indentation. You say you are using indentation in Word, MS Word, and same indentation, same the process you will, when you will press tab or space, then you can use indentation. ठीक है, so let's see. अब हम बात करते हैं थोड़ा सा डेटा टाइप की. ठीक है, डेटा टाइप की बात करते हैं. सम डेटा टाइप होते क्या हैं पहले से समझिए कि डेटा कैन बी एनी टाइप, कुछ भी हो सकता है. दैट शुड बी कैरेक्टर. ठीक है, एक कैरेक्टर हो सकता है डेटा, एक इंटीजर हो सकता है डेटा, रियल नंबर्स हो सकते हैं, स्ट्रिंग हो सकता है, कुछ भी. दीज आर द डेटा टाइप. वट एवर यू विल टाइप,
whatever you will type in the program, whatever you will write in the program, or whatever you will input in the computer, that is called a data. And the specific type, like suppose that you are using entering numbers, you are entering integers, numbers, you are entering characters, you are entering strings, you are entering statements, then different ways, like आप अपना नाम input कर रहे हो, then it is a string. If you are using A, B, C, only A, only B, only C in different places, then it is a character. If you are using 2.3, 3, 4, 5, 6, any number, then it is an integer. Okay, so in this, these all are the data type, but like whatever the way, whatever the data you will input, and the type of that, which type of a data you will input, that is called a data type. Anything enclosed in the bracket, अब यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट मैंने लिखे हुए हैं, anything enclosed in a bracket, these brackets, ठीक है, is considered as a string. इसको हम string consider करेंगे. कुछ भी अगर नंबर भी लिखा होगा ना, suppose that I will write numbers 2, 34, ठीक है, you in Python computer it is not only double quote, you can use a single quote also, ठीक है, single quote also you can use in between, you can write whatever you write, that is a string, ठीक है. ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा, ठीक है. तो when you will write a number in it, that is also a string, that is not a number, okay. But if you write a name like Ram in that, so that is also a string, ठीक है. Double quote or single quote, whatever you want to use, that is up to you, okay. Ram, so that is also a string, that is also a string. Okay, let me tell you a very interesting thing. Suppose that I have defined a value A is equal to Ram, or B is equal to Lal. Okay, so here Ram and Lal, if you want to add a number, to see if you want to add these two variables, that two strings, then you will just write A plus B, then the value will be output, you will get Ram Lal. This way, when you will print this C when you will print, then Ram Lal. Same as suppose that if you the value of A will at the place of Ram, the value which you have given, that is 2, 3, 4, okay. Then also the value of C will be 2, 3, 4 Lal. Okay, so that is very important thing. This will ask in the board examination also, as the output, what is the output of this, what is the output of this, okay. So in that, at that time, you have to remember that what this is the very important thing, okay. So when the number is in integer, suppose that if you will take integer and the number, then that is completely different thing, okay. If you are using a string, both numeric and alphabet, then that is a completely different thing. तो ये बहुत ध्यान रखने वाली चीज है कि हमें क्या यूज करना है, कब क्या यूज करना है, ठीक है. अब यहाँ पे बात करते हैं, any value with fraction part is called a real value, ठीक है. ट्रू और फॉल्स वैल्यू स्पेसिफाई बूलियन, ठीक है, उनको हम बूलियन बोलते हैं. ट्रू या फॉल्स की बात आती है. अब यहाँ पे जैसे कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए हुए हैं. नंबर्स की बात करें, इंट लाइक 10, 5, ठीक है, 10, 5 इट्स इंटीजर. फ्लोट लाइक 3.5, 3.025. अगर हम एक स्पेसिफिक की बात करें, फ्लोट की बात करें, तो इसकी अगर लेंथ की बात करें, तो डेसिमल के बाद, सपोज दैट 32 है, डेसिमल यहाँ पे 302 है, ठीक है. तो 302 के बाद 2, 4, 3, 4, मतलब 4 डेसिमल प्लेस तक फ्लोट लेता है, ठीक है. फ्लोट विल टेक टिल 2, 4, 3, 4. इसके बाद हमें डेसिमल डिफाइन करना पड़ता है अगर हमें इससे बड़ी वैल्यू लेनी है. तो इट विल टेक टिल द 6 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है. ये 6 डेसिमल प्लेसेस तक लेता है आफ्टर डेसिमल, ओके. बिफोर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एंड एज मच यू कैन टिल 16 बिट, ओके. तो कॉम्प्लेक्स नंबर लाइक 3 + 5i, ये अपने मैथ्स टीचर से पूछोगे, वो इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे अच्छे से. 3 + 5i, व्हाट इज i की वैल्यू -1 होती है, बट हाउ इट विल टेक, दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग, ठीक है. ये आपको वहाँ पे -2 होती है या -1 होती है, ये आपका मैथ्स टीचर जो भी है, मैथ्स सर बताएंगे, प्रदीप सर यानी कि, ही विल टेल यू प्रॉपरली, ठीक है. नाउ स्ट्रिंग, यहाँ पे स्ट्रिंग की बात करते हैं. जैसे मैं हमने लिखा पंकज ए, देखो डिफरेंट तरीके से, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था, इस तरीके से यहाँ पे डिफाइन किया गया हुआ है. तो यू कैन डिफाइन स्ट्रिंग लाइक दिस, ठीक है. नॉट डिफाइन, इट्स अ स्ट्रिंग इज अ डेटा टाइप, ठीक है. लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, ठीक है, दीज आर द एलिमेंट्स. तो लिस्ट जो है ये लिस्ट,
डेसिमल वैल्यू, सपोज दैट हमने कहा 2.35, अब हम इसमें ये हमारी एक रियल वैल्यू होगी, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, राउंड ऑफ नहीं होगी, रियल वैल्यू मीन्स द फ्रैक्शन। सपोज अगर हम कोई भी वैल्यू लिखी 2/3, ओके, तो 2/3 इसका मतलब होगा 1 मीनिंग 0.25, यही तो होगा, सॉरी 0.45, 0.45, यस, नहीं 45 भी नहीं होगी, 3 4 12.33 करके होगी, 0.433, ठीक है। जैसे हमने लिखा 4/5, ठीक है, या 41/5, तो यहाँ पे 5 क्या होगा, 8.2 हो गया, ठीक है। तो दैट इज द रियल वैल्यू, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। द कन्वर्जन, मतलब यहाँ पे कन्वर्जन की बात हो रही है, हम लोग 41.5 कभी नहीं लेते हैं, वट एवर यू विल टाइप इन कंप्यूटर इन फ्रैक्शन फॉर्म, देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द सेम 8.1, 8.2, 8.3, वट एवर द वैल्यू, ठीक है। बंद करो ये, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, इनके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। यार बहुत अच्छा टॉपिक है, मजा आता है इसमें। तो यहाँ पे जैसे 3 4 5 पंकज, तो यहाँ पे हम मल्टीपल वैल्यूज, डिफरेंट टाइप, हम एक लिस्ट कंप्लीट एक बार में एक सिंगल वैल्यू जाए, लाइक एरे इन अ सिंगल डेटा टाइप वी विल इनपुट मल्टीपल वैल्यूज, ठीक है। एंड इन टपल वी विल इनपुट डिफरेंट वैल्यूज, ठीक है। इन डिक्शनरीज वैल्यू डिफरेंट वैल्यूज, बट यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, लाइक लिस्ट में हम लोग जो होता है, लिस्ट में ये म्यूटेबल है, मतलब यू कैन चेंज द वैल्यू ऑफ अ लिस्ट, ठीक है। लिस्ट की वैल्यू, लिस्ट वट एवर द एलिमेंट्स इन द लिस्ट दैट यू कैन चेंज, okay, in between the program, but in tuple you can't change the program, when you will define, after that you can't change. In dictionary there is a key, it is a way of dictionary, this is a here key, इसको हम की बोलते हैं और इसको वैल्यू बोलते हैं। हम जैसे हमने ये उसी डिफाइन किया था, जैसे नेम, डेटा इनपुट करने के लिए इसका यूज सबसे ज्यादा होता है। जैसे हमने कहा नेम और फिर कोलन लगाया, ठीक है, एंड यहाँ लिख दिया गौरव, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, नेम एंड देन कोलन देन गौरव, सो हियर दिस इज द की, इसको हम की बोलते हैं, और इसको जितनी भी है ना, AEIOU, तो ये सारी की हैं, एंड द 1 2 3 4 5 आर द वैल्यूज, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है AIOU आर कीज एंड 1 2 3 4 5, इसके पूरे पूरे टॉपिक्स हैं आपके सिलेबस में, ठीक है। लिस्ट, टपल, डिक्शनरी के अलग अलग चैप्टर्स हैं, तो उसमें बहुत सारी चीजें बताएंगे, ठीक है। अगर आप एक कोई भी अच्छे से पढ़ लोगे तो रिमेनिंग बहुत अच्छे से समझ में आ जाते हैं। लिस्ट अगर आपने अच्छे से पढ़ ली तो टपल, डिक्शनरी दोनों अपने आप आ जाएंगे। टपल आगे पढ़ लिया, डिक्शनरी पढ़ ली, तो सब कुछ ऑटोमेटिकली इट विल लिंक्ड अप फिर विद बोथ, ठीक है। तो नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं। कोई क्वेश्चन इसके अलावा, किसी का कोई क्वेश्चन? ओके, सो अब म्यूटेबल, अनम्यूटेबल, इम्यूटेबल। इम्यूटेबल और म्यूटेबल मतलब क्या होता है? म्यूटेबल मतलब चेंजेबल, इम्यूटेबल मतलब नॉन चेंजेबल, ठीक है। यहाँ पे म्यूटेबल मतलब चेंजेबल और यहाँ इम्यूटेबल मतलब नॉन चेंजेबल। तो यहाँ पे की बात करें, लिस्ट, डिक्शनरीज एंड सेट्स, ठीक है, तो दीज आर द म्यूटेबल, अभी जैसे ऊपर बात करी, ठीक है। एंड नॉन चेंजेबल, जैसे यहाँ पे टपल्स मैंने बताया था, स्ट्रिंग, बूलियन, फ्लोट, इंटीजर, यहाँ पे इनकी चेंजेबल की बात, नॉन चेंजेबल की बात इसलिए डिफाइन की गई है क्योंकि इनका टाइप हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। व्हेन यू विल गिव इनपुट, सपोज दैट आपने एक बार इनपुट किया, प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर दिया, अब एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन यू कांट चेंज एनीथिंग, ठीक है। So this is called a immutable। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, look at the following statement carefully, so A P is equal to 10, Q is equal to P and then R is equal to 10, मतलब यहाँ पे जो Q की वैल्यू हो गई that is equal to P means 10, यानी कि they will represent 10 10 10, ठीक है। now try change, अब यहाँ पे P is equal to 17, R is equal to 7, Q is equal to 9, अब in this case there is no change, ठीक है। did the values actually change? no, यहाँ पे देखो चेंज हुई है, ठीक है। Q की वैल्यू 10 हो गई है, ठीक है। इस तरीके का चेंज की बात हो रही है, ठीक है। बिकॉज सर वैल्यू जो होती है वो डिफरेंट होती है, और हम डिफाइन करने का भी तरीका डिफरेंट होता है, बहुत सारे तरीके होते हैं, हाउ टू डिफाइन द वैल्यूज, हाउ टू इनिशियलाइज द वैल्यू, हाउ टू एक्सप्लेन द डेटा, ठीक है। जैसे हाउ टू राइट द सीक्वेंस, अभी नेक्स्ट आ रहा है आगे, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं वेरिएबल्स और वैल्यूज की, ठीक है। वेरिएबल्स और वैल्यूज क्या होते हैं कि एन इंपॉर्टेंट फैक्ट टू नो इज इन पाइथन वैल्यूज आर एक्चुअली ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा क्लास और ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, ठीक है। ये रेफरेंस, अब यहाँ पे
ऑब्जेक्ट और योर रेफरेंस वैल्यू, यानी कि ऐसा समझ लो कि दिस इज द कटोरी एंड दिस इज द दाल, ठीक है, दिस इज कैप्ट इनसाइड इट, ठीक है, समझना। तो द वेरिएबल विच यू विल टेक दैट इज a type of a bowl, in that the value will be kept. When you will use this bowl, then the value or dal will be used, ठीक है। वेरिएबल ब्लैंक हो जाएगा, जब भी आप चाहो दूसरी वैल्यू डाल सकते हो उसमें, ठीक है। तो दिस इज द रेफरेंस नेम्स होते हैं, ठीक है। दीज आर द रेफरेंस नेम, जस्ट अ रेफरेंस नेम, ठीक है। जैसे अगर हमारा नाम गौरव है, तो इफ यू विल कॉल गौरव, ठीक है, तो अगर गौरव वहां पे बहुत सारे होंगे तो वो इक्वल वैल्यूज डिफरेंट होंगी, मतलब उनमें वैल्यूज हैं, ठीक है। अब आर्यन है, इफ यू विल आर्यन में क्या है, आर्यन इज अ पर्सन, तो पर्सन इज अ वैल्यू एंड आर्यन इज अ नेम, आर्यन इज अ वेरिएबल एंड पर्सन इज अ नेम। मेन तो पर्सन है ना, बट हियर द वेरिएबल इज अ नेम, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज यहाँ पे भी कही गई है कि द वेरिएबल इज अ रेफरेंस वेरिएबल, ठीक है, एंड इट इज द ऑब्जेक्ट जो इसमें वेरिएबल जो है वो एक ऑब्जेक्ट को होल्ड करता है, ठीक है, समझ आया। अब एक और चीज एग्जांपल लेते हैं। अब जैसे यहाँ पे अभी ऊपर भी दिखाया था, जैसे बी और ए की सपोज दैट वैल्यू 10 है, ठीक है, बी और ए की वैल्यू सेम है। तो यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें तो हम ऐसे इसको लिख सकते हैं, कहाँ गया मेरा पॉइंटर, हाँ, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 10, ठीक है। मतलब द वैल्यू ऑफ A and B are same. That's why the value object, the location reference of the both are situated at the same location. ठीक है, तो यहाँ पे रेफरेंस वैल्यू B की भी और A की भी सेम है। बट सपोज दैट इफ आई विल चेंज द वैल्यू, अगर हमने इसकी वैल्यू को चेंज कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, अब हमें इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, A इज इक्वल टू 10 एंड B इज इक्वल टू 20, ठीक है। तो अब एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पे हम जो रेफरेंस वैल्यू है एक ऑब्जेक्ट नया क्रिएट हो जाएगा, नया ऑब्जेक्ट डाल दिया इसमें, तो यहाँ पे रेफरेंस वैल्यू दोनों की चेंज हो गई, ए की डिफरेंट हो गई और बी की डिफरेंट हो गई, ठीक है। तो इन दिस वे द डेटा एंड रेफरेंस वैल्यू विल बी चेंज, ठीक है। तो ये एक मतलब बहुत हार्ड टर्म नहीं है, यहाँ पे जस्ट इतना समझो कि द लोकेशन ऑफ जो ए है इट इज द रेफरेंस एंड द वैल्यू विच यू विल फीड दैट इज ऑब्जेक्ट, ठीक है। और जो वेरिएबल होता है दैट इज कॉल्ड रेफरेंस, द वैल्यू होती है उसे हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट विल बी होल्ड बाय रेफरेंस वेरिएबल, ठीक है। जब when you will call this reference value variable, then automatically the value will be called. समझ में आया सभी को, ठीक है। जब भी हम वेरिएबल कॉल करते हैं, रेफरेंस कॉल करते हैं, तो ऑटोमेटिकली वेरिएबल कॉल हो जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नाउ वेरिएबल इंटरनल। अब यहाँ पे कुछ मजेदार चीज है, हम यहाँ पे थोड़ा सा प्रोग्रामिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। इफ यू वांट टू डिफाइन द डेटा टाइप, which type of a data, if you want to find which type of a data we have used in program, ठीक है। सपोज दैट इफ एनी पर्सन हैज नॉट डिफाइंड इट, ठीक है, अगर किसी ने इसको डिफाइन नहीं किया है, तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो हियर टाइप फंक्शन वी विल यूज, ठीक है, दिस टाइप फंक्शन हियर विल यूज, ठीक है। हाउ यू विल यूज, यू विल सपोज दैट हमने यहाँ पे देखो एग्जांपल दिया हुआ है, सपोज दैट a इज इक्वल टू 4, द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 4, नाउ टाइप 4, ठीक है। तो टाइप 4 ऐसे भी यूज कर सकते हैं, टाइप ए ऐसे भी यूज कर सकते हैं। सपोज दैट व्हेन यू विल यूज टाइप 7, द वैल्यू विल बी इंटीजर, ठीक है। सपोज दैट हमने इसके अंदर लिखा हुआ है कि टाइप वेरिएबल का नाम यूज कर दिया जैसे यहाँ पे, तो भी इंटीजर, उसके साथ उसका आउटपुट ऐसे आता है, क्लास इंट विद इन कोट इंट, ठीक है। जैसे यहाँ पे अब सपोज दैट हमने लिखा बी इज इक्वल टू राधे, ठीक है, ठीक है। तो बी की वैल्यू क्या है, राधे। नाउ व्हेन यू विल प्रिंट इट, बी तो राधे प्रिंट होगा, बट इफ यू वांट टू राइट लाइक दिस, प्रिंट टाइप एंड बी, ठीक है, तो क्या प्रिंट होगा, क्लास स्ट्रिंग,
क्यों? क्योंकि राधे एक स्ट्रिंग है, स्टेटमेंट है, ठीक है। अगर यहाँ पे डेसिमल प्रिंट होता, सपोज दैट हमने लिखा होता यहाँ पे a इज इक्वल टू 34.5, then it will be the at the place of a string it will be the float। समझ में आया सभी को? ठीक है, तो दिस इज द प्रोसीजर, देन विल यूज टाइप एंड क्लास, ठीक है। नाउ देयर इज अ आईडी, ठीक है। आईडी क्या है कि इसका मेमोरी एड्रेस और लोकेशन विल प्रिंट वेयर इट इज स्टोर्ड एट इन द कंप्यूटर, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू हम प्रिंट करना चाहेंगे, जो भी वैल्यू तो नहीं प्रिंट होगी, लेकिन जो भी एड्रेस प्रिंट होगा, जिस लोकेशन पर वो वैल्यू सेव होगी, द लोकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर और एड्रेस ऑफ दैट पर्टिकुलर वैल्यू विल बी प्रिंट, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की बहुत जरूरत नहीं है, बस आईडी किसी की कोई पूछता है हमसे कि टेल मी द आईडी, देन इन दैट केस यू हैव टू एक्सप्लेन द वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि हमने आईडी प्रिंट करी, आईडी, ठीक है, सिंपल आईडी 5, देन इन दैट केस वेयर इट विल स्टोर द आउटपुट लाइक दिस। ये आपसे अगर आईडी का एड्रेस आईडी पूछा जाए, ठीक है, आईडी 4, देन यू कांट टेल द एड्रेस, ओके। तो एक ऐसा नहीं है कि इट विल द डिफरेंट वैल्यू, ठीक है, ये डिफरेंट दोनों वैल्यूज होंगी, और हो सकता है अगर डिफरेंट वेरिएबल होंगे तो डिफरेंट वैल्यू होंगे, डिफरेंट रेफरेंस होंगे तो डिफरेंट वेरिएबल्स होंगे। तो इन दैट केस द वट एवर द आउटपुट यू कांट फाइंड, ठीक है, दिस विल डू ओनली बाय द कंप्यूटर, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन ये आ सकता है हाउ यू कैन प्रिंट द मेमोरी एड्रेस ऑफ any variable। So in that case you will write like this, so print id and variable name, ठीक है, या फिर you can take either value also, ठीक है, वैल्यू भी लिख सकते हो, that in that case whatever the location, whatever the value location it will print, ठीक है। now थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखो अब हम बात करते हैं प्रोग्रामिंग पे, अब धीरे धीरे पहुंच गए हम लोग, ठीक है। हम लोग वेरिएबल डिफाइन कैसे करते हैं, ठीक है, आउटपुट कैसे निकालते हैं, प्रिंट कैसे करते हैं, इन सब की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, ठीक है। एक एक स्टेटमेंट की बात करें, है ना, तो हम लोग क्या करेंगे कि नेम्ड लोकेशन दैट रिफर्स टू अ वैल्यू एंड हुज वैल्यू कैन बी यूज्ड एज एंड प्रोसेस ड्यूरिंग अ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। कितने चलेंगे, देखिए मेरे पाइथन डू नॉट हैव फिक्स्ड लोकेशन, ठीक है, चलो इसको छोड़ते हैं, हम मेन चीज समझते हैं, ठीक है। क्या है कि x इज इक्वल टू 5 हमने यहाँ डिफाइन किया, तो हम जो वैल्यू डिफाइन करते हैं वो इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि हम जब बिफोर डिफाइन मतलब नॉर्मल डिफाइन करते हैं, ठीक है। आई एम नॉट टेकिंग इनपुट फ्रॉम द यूजर, इट इज जस्ट यू आर टेकिंग द प्री डिफाइनिंग, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू हेलो, तो यहाँ पे ये क्या है, इंटीजर है, और ये क्या है, स्ट्रिंग है, हियर इट इज स्ट्रिंग, ओके। तो when you will print these values, ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा फिर वेरिएबल डू नॉट नीड टू डिक्लेयर विद एनी पर्टिकुलर टाइप, ठीक है। तो यहाँ पे टाइप जब हम वैल्यू डिफाइन करेंगे, when you will define a value in front of the variable, then no need to explain the data type, ठीक है। क्यों? इसमें हमारा एक टर्म यूज होता है डायनेमिक टाइपिंग, ठीक है। तो इसको जो पाइथन में है, पाइथन में इस टर्म को, इस प्रोसेस को हम लोग डायनेमिक टाइपिंग कहते हैं। वेरिएबल डू नॉट नीड टू डिक्लेयर विद एनी पर्टिकुलर type and can even change type after they have been set, it is known as dynamic typing। ये केवल पाइथन में ही पॉसिबल है, ठीक है, कि हम उनका डायनेमिक टाइपिंग कर सकते हैं अदर लैंग्वेज में, लेकिन उसके लिए टर्म यूज होता है टाइप कास्टिंग, ठीक है। इसमें भी यूज होता है, इसमें भी हम लोग काम करते हैं टाइप कास्टिंग का, ठीक है। आगे टाइप कास्टिंग भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू पाइथन, यहाँ पे भी दोनों स्ट्रिंग है, इट इज अ इंटीजर एंड इट इज अ स्ट्रिंग, ठीक है। अब हम प्रिंट कैसे करते हैं, हमने सिंपल एक प्रिंट लिखा और प्रिंट लिख के ब्रैकेट में लिख दिया वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से वैल्यू प्रिंट हो जाती है, ठीक है। अब वट एवर द वैल्यू ऑफ दैट, अब जैसे x प्रिंट किया तो x यहाँ पे पहले x की वैल्यू 4 थी और फिर x की वैल्यू पाइथन होगी, तो लास्ट वैल्यू व्हेन यू विल, देखो कंप्यूटर में क्या होता है कि द स्टेटमेंट जो भी चल रहा होता है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलता है, ठीक है, एक्सेप्ट लूप में ऐसा नहीं होता, ठीक है। सपोज दैट यू हैव डिफाइंड ओवर हियर x इज इक्वल टू 33 एंड आफ्टर दैट y इज इक्वल टू 44, ठीक है, एंड देन अगेन x इज इक्वल टू y कर दिया हमने, तो वैल्यू इफ हियर यू विल प्रिंट
then the value of x is 33, but here you will print the value of x is 44, whatever the value of is y, but the value of y is equal to 44. So the procedure, when you will proceed the program, when you will go to the step by step programming, then it will be accordingly it will goes on. ठीक है, it will goes on accordingly and it will print accordingly. ठीक है, तो प्रोसीजर एक स्ट्रेट रहता है और उसी अकॉर्डिंग वो प्रोसीजर चलता रहता है. ठीक है. नाउ अब देखो यहाँ पे एक चीज होती है LHS RHS. LHS अगर हम बात करें, मैथ्स में पढ़ता है, मैथ्स में पढ़ा है आपने, लेफ्ट हैंड साइड RHS, राइट हैंड साइड. यहाँ पे हम L वैल्यू R वैल्यू बोलते हैं. जैसे हमने लिखा, हम देखो वैल्यू डिफाइन करते हैं कितने कितने तरीके से. हमने लिखा x इज इक्वल टू 2, जैसा कि अभी ऊपर. ठीक है, हमने एक और चीज डिफाइन अभी ऊपर की थी, x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 10. ठीक है, तो इन दैट केस x और y की वैल्यू दोनों 10 है. ठीक है, ऐसे भी हम लोग डिफाइन करते हैं. तीसरा हम लोग डिफाइन करते हैं x कॉमा y इज इक्वल टू 10 कॉमा 11. अब इन दैट केस द वैल्यू ऑफ, ये बहुत अच्छा समझना, द वैल्यू ऑफ x इज 10 एंड y इज 11. ठीक है, मतलब हमने अगर ऐसे डिफाइन किया x इज इक्वल टू 10, तो एक डिफरेंट चीज हो गई है ना, एक डायरेक्टली वैल्यू हो गई. हमने डिफाइन किया x और y इज इक्वल टू 11. ठीक, सेम स्टेटमेंट, दिस सेम स्टेटमेंट जो हम अगर इसको डिफाइन, इफ यू वांट टू डिफाइन इन अ सिंगल लाइन, देन यू विल डिफाइन x कॉमा y इज इक्वल टू 10 कॉमा 11, मींस द वैल्यू ऑफ x इज y, x इज 10 एंड y इज 11. समझा सभी को? ठीक है, इन दिस वे, जैसे यहाँ पे देखो डिफाइन किया गया है, ये देखो ये. ठीक है, P Q R इज इक्वल टू 5 10 7, मतलब द वैल्यू ऑफ P Q R इज इक्वल टू 5. अब देखो यहाँ पे ऐसे भी किया जा चुका है, Q R P. ठीक है, Q की वैल्यू क्या होगी, P प्लस 1, मतलब Q की वैल्यू P प्लस 1, मतलब यहाँ की Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 प्लस 1 मीन्स इट इज 6, एंड R द वैल्यू ऑफ R इज Q प्लस 2, मीन्स Q प्लस 2, दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ इट इज 10 प्लस 2. Okay, and then P, the value of P is R minus 1, that is the value of R minus 1 is 7 minus 1, that is 6. Okay, so in this way also the value can be defined. ठीक है, अब यहाँ पे स्वैपिंग की बात करते हैं, थोड़ा सा एक और कॉन्सेप्ट. जैसे हमने कहा कि x की वैल्यू हमारी 2 हो जाए है और y की वैल्यू 3 है. ठीक है, नाउ आई वांट कि x की वैल्यू 3 हो जाए और y की वैल्यू 2 हो जाए, मतलब दिस विल गोज हियर, दिस विल गोज हियर. तो इसके लिए हमें बहुत ज्यादा कोडिंग करने की जरूरत नहीं होती. अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में वी हैव टू रिक्वायर्ड मोर कोड. ठीक है, हियर व्हाट यू विल डू, यू आर जस्ट लाइक यू विल डू x comma y is equal to y comma x. Now the value of x is y and y is x. ठीक है, so in this way you can do the programming and easily you can find the thing. ठीक है, तो ऐसे हमारे असाइंड, इनको हम असाइनमेंट, असाइनिंग वैल्यू कहते हैं. ठीक है, विल कॉल दिस प्रोसेस कॉल्ड असाइनिंग वैल्यू. ठीक है, असाइनिंग वैल्यू. ठीक है, असाइंड यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है असाइन टू y, असाइन टू वेरिएबल z रिस्पेक्टिवली. ठीक है, तो दिस इज द प्रोसीजर हाउ टू असाइन द वैल्यू. ठीक है, हाउ टू आउटपुट गिव द वैल्यू इन द प्रोग्राम बिफोर एग्जीक्यूटिंग द मेन स्टेटमेंट. ठीक है, हम लोग बाद में भी डिफाइन कर सकते हैं, कैसे डिफाइन करेंगे. ठीक है, अब यहाँ पे हम बात एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने, टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर. अब अभी तक हमने बात किया था कि हम लोगों ने यहाँ पे पहले से बता दिया कि x की वैल्यू ये होगी, y की वैल्यू होगी. इस कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं जहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट होती है कि यूजर से वैल्यू लें, कि भाई हम, क्योंकि प्रोग्राम तो द प्रोग्राम विच विल क्रिएट विच विल मेक दैट इज नॉट फॉर अ सिंगल पर्सन ना, मल्टीपल पर्सन. अब उसके लिए कैलकुलेशन में इफ वील यूज कैलकुलेटर देन एनीवन कैन कैलकुलेट ना. If suppose that when calculate, the person who has made the calculator, he will created when the value of the data frame will be created. In that case, the processor will be changed. ठीक है. Now see, अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो द वैल्यू जो भी होती है, कैसे इनको इसके लिए क्या यूज करते हैं. इसके लिए हम लोग यूज करते हैं इनपुट स्मॉल लेटर्स में इनपुट. ठीक है, इसको यूज कैसे करते हैं. व्हेन यू विल डिफाइन, सपोज दैट आपको अगर नेम इनपुट करना है, ठीक है, किसी का नाम इनपुट करना है, ठीक है, या इंटीजर इनपुट करना है, तो दोनों के लिए अलग अलग मेथड है. ठीक है, जैसे हमने कहा कि x इज इक्वल टू, हमने लिखा
इंट, पहले चलो इंट इनपुट, अब ये सॉरी से मेरे को नहीं लगता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इंट इनपुट, ठीक है। तो इनपुट इज अ मेथड एंड इंट इज अ डेटा टाइप। ये हमारा यहाँ पर डेटा टाइप होता है, पहले डेटा टाइप लिखते हैं कि इस टाइप की वैल्यू आपको इनपुट करते हैं और फिर मेथड लगाते हैं। इन दिस ब्रैकेट्स यू कैन राइट ऑल्सो ए स्टेटमेंट, ठीक है। इंटर द नेम, इंटर द फर्स्ट वैल्यू, जैसे हमने एग्जाम्पल में दिया हुआ है। यहाँ पे इनपुट, अगर यहाँ पे इंटीजर डेटा टाइप नहीं लिया गया है, ठीक है, सपोज हमने ऐसे ही लिखा x इज इक्वल टू इनपुट, ठीक है। तो यहाँ पे इन दिस केस अगर x इज इक्वल टू इनपुट लिया हुआ है, देन इन दिस केस द वैल्यू विल बी ऑलवेज इट इज अ स्ट्रिंग, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, स्ट्रिंग होगी। कहाँ गया मेरा पॉइंटर, कहाँ गया, ठीक है। दैट इज द इनपुट, जैसे मैंने लिखा प्रिंट इंटर योर नेम देन x इज इक्वल टू इनपुट, ठीक, देन प्रिंट हेलो x, ठीक है। इस तरीके से लिखा हुआ है। यहाँ पे देखो स्टेटमेंट x इज इक्वल टू इंट इनपुट, इनपुट इंटर एन इंटीजर नंबर, ठीक है। यहाँ पे ऐसे स्टेटमेंट लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे इनपुट, तो ये जो हमारी वैल्यू है ये स्ट्रिंग वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू कैसे इनपुट होगी, इंटीजर, यहाँ पे कैसी वैल्यू इनपुट होगी, इंटीजर, यहाँ पे कैसी वैल्यू इनपुट होगी, स्ट्रिंग। तो व्हेन द डेटा टाइप विल नॉट डिफाइंड एट द टाइम ऑफ टेकिंग इनपुट, देन यू द वैल्यू बाय डिफॉल्ट इट इज अ कैरेक्टर और स्ट्रिंग, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे हमने लिखा इंटीजर, इसकी जगह आप फ्लोट ले सकते हो इंटीजर की जगह, ठीक है। तो स्टेटमेंट प्रॉपर कैसे बनेगा, x इज इक्वल टू फ्लोट विद इन अ ब्रैकेट इनपुट within a bracket enter the number, okay. So in this procedure this will whatever you will write in the double quote that will be print as a, ठीक है। तो इंटर द नंबर एंड देन इनपुट, यहाँ पे हमने इनपुट कर दिया, ठीक है। इस तरीके से हमारी वैल्यू इनपुट थी। किसी को कोई डाउट है यहाँ पे, कोई कंफ्यूजन है, पूछो इफ एनी कंफ्यूजन, बोलो, नो कंफ्यूजन, ओके। सो नाउ अब हम बात करते हैं प्रिंटिंग की, ठीक है, हाउ टू प्रिंट द वैल्यू, ठीक है। हम प्रिंट कैसे करते हैं, यहाँ पे एक स्टेटमेंट मैंने लिखा हुआ है, प्रिंट ऑब्जेक्ट सितंबर, सॉरी सेपरेटर है ये, ठीक है। यहाँ पे सेपरेटर स्ट्रिंग को कह सकते हो एंड, ठीक है, एंड, ठीक। अब यहाँ पे देखो कैसे हम एंड इज, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या, इट कैन बी और वन और मल्टीपल ऑब्जेक्ट सेपरेटेड बाय कॉमा, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल भी दिए, जैसे x लिखा हमने, केवल x वैल्यू लिखी, यहाँ पे देखो, ठीक है, प्रिंट x, तो टू प्रिंट सिंगल वैल्यू, मतलब यहाँ पे प्रिंट जो होगा वो सिंगल वैल्यू होगा, ठीक है। फिर y इज इक्वल टू 20, तो क्या हुआ कि y की 20 वैल्यू है, x और y दोनों प्रिंट होंगे टू प्रिंट मल्टीपल वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा ये कंप्लीट वैल्यू प्रिंट हुई है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की वैल्यू प्रिंट हुई है, ठीक है। एक्स वाई जेड सेपरेटेड बाय सेपरेशन हमने यहाँ पे लिया। अब इसको, अब देखो नॉर्मल जैसे हम प्रोग्राम लिखा, एक छोटा सा प्रोग्राम लेते हैं, स्पेस में है स्पेस, ठीक है। हमने लिखा जैसे एंड का यूज कैसे करते हैं, x इज इक्वल टू 20, ठीक, हमने ये डिफाइन किया। अब हमें इसे जस्ट प्रिंट करना है, तो यू कैन राइट प्रिंट एंड देन x, ठीक है। ये सिंगल लाइन स्टेटमेंट होगा, कुछ नहीं, बस 20 प्रिंट हो जाएगा आउटपुट में। बट सपोज दैट हमने इसको लिखा इस तरीके से कुछ, प्रिंट x कॉमा डबल कोट में लिखा द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। इसको इस तरीके से लिखा, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, प्रिंट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू, हमने इसको डबल कोट में कर दिया, ठीक है, ठीक है, इसको हमने डबल कोट में कर दिया एंड देन कॉमा लगाया और लिखा x, ठीक है। इन दिस वे इट इज प्रिंटेड,
नाउ द आउटपुट विल बी द, ऐसे लिख के आएगा द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू द वैल्यू वट एवर यू हैव डिफाइंड. ठीक है. Now if you want to end it is a new line character. ठीक है. If you want to write end is equal to, ठीक है, end is equal to then it will be the option that whatever you want to write. ठीक है. तो इसको कैसे करते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जैसे हमने लिखा, इसी को लिखते हैं प्रिंट x एंड इज इक्वल टू, आप इसको आप ब्लैंक करना चाहो तो ब्लैंक कर दो, फिर आपने लिख दिया y. ठीक है. सपोज दो वैल्यूज हैं तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये सेपरेशन हो गया यहाँ पे. ठीक है. अब ये एक x जो है वो फर्स्ट लाइन में प्रिंट होगा और y जो है वो सेकेंड लाइन में प्रिंट होगा. ठीक है. तो एंड इज इक्वल टू जो है दैट इज यूज फॉर न्यू लाइन. ठीक है. एट द प्लेस ऑफ एंड यू कैन यूज स्लैश /n. ठीक है. दिस इज by default it is a new line character. ठीक है. ठीक है. अब जो भी प्रिंट एंड ऑफ द लाइन में प्रिंट होगा वो यहाँ पे इस तरीके से प्रिंट हो सकता है. ठीक है. इसके बाद जो भी प्रिंट होगा, अब इस इन डबल कोट्स में जो भी आप लिखोगे दैट ऑल्सो कैन प्रिंट. ठीक है. एट द एंड ऑफ द लाइन. ठीक है. जैसे यहाँ पे देखो x y z ये सेपरेटेड लिखा हुआ है इज इक्वल टू एट. ठीक है. स्टेप इज अ स्टेटमेंट. ठीक है. इसको हम स्टेप जो है स्टेटमेंट की तरह यूज करते हैं. स्टेप अगर कुछ हमें सेपरेशन लिखना है तो एट द रेट ही नहीं, कुछ भी आप वट एवर द कैरेक्टर यू वांट टू यूज. ठीक है. यू कैन यूज एंड इज इक्वल टू एंड डबल कोट. तो यहाँ पे देखो इसको प्रिंट करने के लिए, अब यहाँ पे तो प्रिंट ये हुआ है 10. ठीक है. प्रिंट पहले वाला वैल्यू यहाँ पे 10 प्रिंट हुई है, फिर सेकेंड वैल्यू प्रिंट हुई है इस तरीके से, फिर थर्ड वैल्यू हमने इस तरीके से लिखा हुआ. ठीक है. तो इस तरीके से यू कैन प्रिंट लाइक दिस. ठीक है. अब ऑपरेटर्स को थोड़ा सा हम लोग और एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन आज की क्लास में नहीं, कल की क्लास में. ठीक है. चलो थोड़ा सा करेंगे, फिर स्टार्ट हो जाएगा, फिर कहेंगे मन करेगा स्टार्ट कर खत्म कर दें, कि इसको बड़ा टॉपिक है थोड़ा सा. ठीक है. चलो इसको कल हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करेंगे. ठीक है. इतना आप लोग पढ़ लेना तो समझ में आ जाएगा. ठीक है. ये जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा देन आई विल शेयर दिस फाइल विद यू. ठीक है. तो इफ यू हैव फील एनी प्रॉब्लम देन आस्क मी इन दिस टॉपिक टिल द टाइम आई हैव एक्सप्लेन्ड.